Hello boys and girls. Today we have to study the process of respiration. ठीक है? In today's lecture we will be studying how respiration takes place. So respiration has two steps. One is called respiration takes place in two steps. One is called external respiration or breathing, and the other is called internal respiration or cellular respiration. So what are the two processes? One is called external respiration it is also called breathing, and the other is called internal respiration or it is also called cellular respiration. Respiration is a complex biochemical process. It includes biology as well as chemistry. Certain chemical reactions also take place in respiration. So we may be asked to differentiate between these two. What is external respiration? Inhalation or inspiration of fresh air containing oxygen is called inhalation or inspiration. Inhalation and exhalation of air is called breathing or external respiration. Inhalation of air, fresh air containing oxygen, and exhalation of foul air containing carbon dioxide basically is called breathing. ठीक है, what is external respiration? Inhalation of fresh air having O2 and exhalation. Inhalation is also called inspiration and exhalation is also called expiration, and together make respiration. Inhalation of fresh air having oxygen and exhalation of foul air. Is it becoming congested? We will write down here. Inhalation of fresh air having O2, oxygen, and exhalation of foul air, foul air having CO2 is called breathing. Point number 1. Point number 2. Breathing is a physical process. Remember, no chemical reaction takes place when we inhale air and when we exhale air. The air goes into the lungs and it comes out of the lungs. It is a physical process. Breathing is a physical process. That means no chemical reaction takes place here. No chemical reaction takes place here. Chemical reaction does not take place here. This is HERE here. And what is cellular or internal respiration? When oxygen oxidizes the food. And what do we mean by oxidizes? Burns slowly the food. It is called internal respiration. And it is a chemical reaction. It is an exothermic chemical reaction. What is an exothermic reaction? Any chemical reaction in which heat is released is called exothermic chemical reaction.
So respiration is an exothermic chemical reaction. This has been asked in previous board exams. Explain. Respiration is an exothermic chemical reaction. So we have to explain. Remember, respiration is the opposite of photosynthesis. In respiration, we already have glucose. We have C6H12O6, and we add oxygen to our food. This is glucose. This is oxygen which we have inhaled along with air, and this burns the food and produces 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. I will explain ATP a little later on. So remember, respiration is exothermic reaction. Exothermic reaction, a reaction in which heat is released. You know what is the function of oxygen gas. Oxygen burns the food and produces heat. That's why it maintains our body temperature at 37 degrees Celsius normally. Now, those who die, those who do not inhale oxygen, have their body cooled down. Their body becomes cold because of lack of oxygen. The African people have wide nostrils. They inhale more oxygen. More oxygen burns more food. More oxygen oxidizes more food, and that produces more heat energy. That's why they are said to be hot-blooded people. The African people are hot-blooded people. Their body temperature is generally slightly higher than our body temperature most of the times. See, so have you understood what are the two steps in respiration? The first step is called breathing or external respiration, and the second step, B. This is A. The first step of respiration is breathing, which is also called external respiration. And the second step of respiration is internal respiration, when oxygen goes into the mitochondria and it burns the food. You know, mitochondria are called the powerhouses of the cell. What happens in a powerhouse? In a powerhouse, energy is generated, power is generated, electricity is generated. So electricity is energy. What is energy? The capacity to do work is called energy. Electricity can do work. Electricity can rotate a fan. So electricity is a form of energy. Similarly, in our body also, it produces, respiration produces heat energy, and we can convert that heat energy into various different types of energies which we require. There are many biochemical reactions taking place in our body. Many chemical reactions that take place in our body require a particular temperature. Many chemical reactions require heat. For example, if you have food and after having food, if you drink cold water over it, the process of digestion will be slowed down. अगर खाना खाने के बाद आप ठंडा पानी पी लेते हो तो आपका डाइजेशन बहुत धीरे धीरे होगा, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है. इसीलिए खाना खाने के बाद पहली बात तो बहुत सारा पानी पीना नहीं चाहिए, और अगर पानी पीते भी है तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए. बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेने से पेट ठंडा हो जाता है, और पेट में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है, वो जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो स्लो डाउन हो जाता है. इसीलिए बल्कि इनफैक्ट अगर खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा लूक वार्म वाटर पी लेते हो, कुनकुना दूध पी लेते हो, कुनकुना पानी पी लेते हो, या थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हो खाना खाने के बाद, तो आपका डाइजेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि पेट में थोड़ी गर्माहट आ जाती है, हीट आ जाती है. सो देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी विच रिक्वायर हीट, एंड दैट हीट इज given by the process of respiration. Understood? So inhalation is also called inspiration, and exhalation is also called expiration. And how many times do we inhale and exhale in a minute? Under normal conditions, when we are sitting on a sofa, we breathe 15 to 18 times. 15 से 18 बार सांस लेते हैं हम. अगर हम आराम से बैठे, हमारे पीछे कुत्ता नहीं भाग रहा, हम मेहनत नहीं कर रहे, हम जिम नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 15 से 18 बार सांस लेते हैं एक मिनट में. ठीक है. और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट 20 to 25 टाइम्स हो जाता है ऑन एन एवरेज. एवरेज देखा जाए तो 20 से 25 बार हम सांस लेते हैं. हो सकता है इससे ज़्यादा भी सांस ले या इससे कम भी सांस ले, इट डिपेंड्स. लेकिन गिव साइंटिफिक रीजन पूछा है ओसवाल में कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज.
जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है। इसका रीज़न क्या है? तो मैंने आपको बहुत पहले भी समझा चुका हूँ कि व्हेन वी आर डूइंग हेवी फिजिकल वर्क, हम जब बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी। For more energy, we need more food and more oxygen. More oxygen will oxidize the food, it will burn the food, and after the combustion of food is completed, after the oxidation of food is completed, what is oxidation? Mixing of oxygen with the food is called oxidation. Mixing means chemical reaction between food and oxygen is called oxidation. So, जब oxidation होता है फूड का, फूड जलता है धीरे धीरे तो it produces energy, और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लगेंगे उतना जल्दी जल्दी हमें सांस लेना पड़ेगा। दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी ताकि ब्लड को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचा के भी आना पड़ता है। तो पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। पूरे बॉडी पार्ट्स से CO2 कौन वापस लेके आता है? ब्लड लेके आता है, ठीक है। और ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ से पिकअप करता है? तो लंग्स से पिकअप करता है। लंग्स में आता है ब्लड और ऑक्सीजन को उठाता है और बोलता है चलो ऑक्सीजन तुम्हारी ज़रूरत है, बॉडी का हर सेल तुम्हें मांग रहा है, तो ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचा देता है। फिर हर सेल में ऑक्सीजन जाके फूड को जलाती है। जब फूड जल जाता है तो धुआं निकलता है, CO2 बनती है, और वो CO2 को उठा के ब्लड लेकर आता है और बोलता है चलो CO2 तुम्हें लंग्स में ले जाके फेंक देता हूँ डस्टबिन में। तो लंग्स में ले जाके CO2 जमा कर देता है और फिर हम एक्सहेल करते हैं और वो CO2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सी अब हम ये भी चीज़ देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो उसमें से आपको पहले मैं क्या पढ़ूँ? पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है? वी इनहेल द एयर। सी दिस इज द डायग्राम आप बनाना 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 बनाए तो अपना चेहरा बन जाता है, आपको मालूम है। दिस इज द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल यानी नाक के गड्ढे। अफ्रीका वाले लोगों के नाक के होल ज्यादा रहते हैं। आई रेड इन अ बुक ऑन बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज की एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जिनके नाक के गड्ढे बड़े बड़े हैं दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर। अफ्रीका के लोग देखो ना, उनके नॉस्ट्रिल्स बहुत वाइड होते हैं, नाक के गड्ढे बड़े। अपने इंडिया में भी बहुत से लोग हैं जिनके नाक के गड्ढे जो है बड़े बड़े रहते हैं। दे आर फिजिकली जनरली दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने से ज़्यादा फूड जल के उनमें ज़्यादा एनर्जी बनती है। और अगर आप भी ज़्यादा एनर्जी चाहते हो, अगर आपको सीढ़ियों पे चढ़ना है या हेवी बकेट्स में पानी उठा के ले जाना है तो डीप इनहेलेशन करो और फिर कोई काम करके देखो, आप में एनर्जी ज़्यादा रहेगी। सो नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाती है एंड दिस एयर इज रिच इन ऑक्सीजन। नॉस्ट्रिल हैज हेयर्स इनसाइड इट। नॉस्ट्रिल में हेयर्स है, नॉस्ट्रिल्स विद हेयर्स इनसाइड, हेयर्स इनसाइड टू फिल्टर द एयर। नॉस्ट्रिल्स का काम क्या होता है? एयर को फिल्टर करना। अगर आप कहीं कॉटन उड़ रहा है, कहीं गूसबेरीज उड़ रहे हैं, कहीं धूल कचरा उड़ रहा है, तो आप वहां से अगर जा रहे हैं तो धूल कचरा जो है वो नाक में अटक जाता है। वी आर यूजिंग दिस मार्कर पेन बिकॉज पुराने ज़माने में टीचर्स लोग जो है दे यूज्ड टू यूज अ चॉक स्टिक, चॉक यूज करते थे एंड दे यूज्ड टू राइट ऑन द बोर्ड, दे यूज्ड टू इरेज इट, दे यूज्ड टू रब इट। उसको मिटाते थे तो देयर यूज्ड टू बी चॉक डस्ट एंड दैट चॉक डस्ट यूज्ड टू गो इनटू देयर लंग्स। I have heard of a teacher who was operated upon and the doctors found a lot of, I don't know how much exactly, one student told me that there was nearly 250 grams of chalk dust in the lungs of that teacher. So ऐसा भी होता है ना। Those who work in stone quarries, जो गिट्टी खदान में काम करते हैं लोग, पत्थर को तोड़ तोड़ के गिट्टी बनाते हैं, वहाँ पे पत्थर का धुआं धूल उड़ती रहती है। कहीं कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते रहते हैं, वो सब हमारे लंग्स में घुस जाते हैं और बीमारी होती है, एस्थमा वगैरह हो सकता है। दैट्स व्हाई एस्थमा से बचाने के लिए हमको जिसने बनाया वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, हर एक चीज़ सोच सोच के बनाया है। सो नॉस्ट्रिल में बाल है, यहाँ पर एयर फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। ये फिल्टर्ड एयर, ऑक्सीजन वाली एयर यहाँ आएंगी एंड दिस इज द फेरिंक्स। फेरिंक्स को क्या कहते हैं? कोई लोग हलक भी बोलते हैं। हलक मतलब द प्लेस वेयर द नेजल पैसेज एंड द ओरल पैसेज मीट टुगेदर, जहाँ नाक का रास्ता और मुंह
मुंह का रास्ता दोनों एक दूसरे से मिलता है। जैसे जो लोगों को सर्दी हो जाती है और वो सर्दी को खींचते ऐसा नाक में से ऐसा खींचते तो सर्दी जाकर उनके मुंह में घुस जाती है। क्यों? क्योंकि नाक और मुंह का रास्ता एक दूसरे से मिला है। और इसी वजह से कभी कभी अगर आपको सर्दी होगी और अच्छा खाना बनाया आपका टेस्टी फूड, तो भी आपको उसकी स्मेल समझ में नहीं आती, उसका टेस्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि नाक और मुंह का रास्ता दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सो दिस इज द फेरिंग्स। फिर एक रास्ता जो है वो एक रास्ता फूड पाइप बन जाता है, इधर से एक रास्ता फूड पाइप बन जाता है। This is the food pipe, esophagus which we have already studied। और यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस यानी ढक्कन। जब हम खाना खाते हैं तो सांस लेने का इधर का ढक्कन बंद हो जाता है, इधर का ढक्कन बंद हो जाता है एंड फूड गोज डायरेक्टली इनटू द esophagus। तो अब ध्यान से समझो, the air will come here into the trachea and the trachea is made up of cartilage। ट्रैकिया कैसे बना है? कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेज रिंग से बना है। और ओसवाल नोट्स में ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई इज आवर ट्रैकिया, ये ट्रैकिया जिसको कंठ भी बोलते हैं लोग, है ना, यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सॉफ्ट, कार्टिलेज से बना है। एंड यू नो व्हाट कार्टिलेज इज, वी हैव स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड, हमने 9th में पढ़ चुके हैं कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज मींस सॉफ्ट बोन्स। ये कान में जो हड्डी ये सॉफ्ट बोन है, नाक के सामने की हड्डी सॉफ्ट बोन है। तो ये जो गला है, गुंडे लोग की लैंग्वेज में जिसे टेटवा कहते हैं, टेटवा बोलते हैं ना हिंदी मूवीज में, ये छोटे बच्चे का बोलते हैं आगे मत बढ़ना वरना इस बच्चे का टेटवा दबा के मार डालूंगा। सो टेटवा यानी ये गले का कंठ होता है, ठीक है, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स। तो इस ये रिंग से कार्टिलेज से क्यों बना हुआ है, कोई सॉफ्ट वाला पाइप से क्यों नहीं बना है? तो रिमेंबर, when we are not breathing properly, when the amount of air is very less in the trachea, अगर वहाँ ट्रैकिया कार्टिलेज से नहीं बना होता तो it would have collapsed। आपने देखे जिस बलून में हवा नहीं होती वो बलून चिपक जाता है और मुरझा जाता है, या तो फिर जिस पाइप में से हवा फ्लो नहीं होती वो पाइप कैसा करता है, चिम जाता है, उसकी डायमीटर कम हो जाती है, कभी कभी वो क्रैक भी हो सकता है, टूट भी सकता है। तो हमारा जो ट्रैकिया है वो कार्टिलेज से इसलिए बना है, ये गिव साइंटिफिक रीजन है 2 मार्क्स के लिए। आर ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग्स। देखो रिंग्स है यहाँ पर, हाथ लगा के देखो ऐसे गोल 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 चूड़ियाँ बनी हुई है, रिंग्स, है ना। सो आर कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ, आर ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग्स बिकॉज when we go into deep thinking, you also should realize it, you also should find it out. I have tried it, I have read it in books and I have even tried it on myself. When we go into deep thinking, sometimes for 2 minutes, for 3 minutes, we stop breathing, yes, find it out. Sometimes you also can catch yourself up that you are not breathing when you are either very stressed, when you are under a heavy tension or burden, or when you are under deep sleep. And when you come out of your stress, when you come out of your deep attention, then you say, oh, छुट्टी हो गई, चलो अच्छा हो गया. Then you breathe heavily. But before that, what were you doing? You are not breathing properly. हो सकता है कि अभी मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, ये सुनते समय भी आप इतना ध्यान से सुन रहे कि आपकी सांस बंद होंगी और फिर बाद में आप गहरी सांस लोगे. तो हमारा क्या होता है, कभी कभी हम सांस बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन एंड CO2 का इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैकिया में बहुत कम हो जाता है. ऐसे में क्या होगा, अगर यहाँ कोई ऑर्डिनरी पाइप लगा होता सादा वाला, तो पाइप कोलैप्स हो जाता था, चपक जाता था, पाइप छोटा होकर टूट जाता, मुरझा जाता था. लेकिन हमारा कार्टिलेज है तो ये पाइप हमेशा इसकी डायमीटर बड़ी की बड़ी रहती है, क्योंकि कार्टिलेज जो है वो हमेशा टाइट रहता है. वेदर एयर इज कमिंग इन और गोइंग आउट, or whether there is no air, it will always remain, its diameter will always remain constant. Its diameter will not decrease. Understood? So this is the trachea. Then after the trachea, acha remember in the nostril along with the hairs there is mucus also. Mucus यानी सर्दी, सर्दी भी होती है, ठीक है. There is in the nostril there is mucus also. And what is the function of the mucus? It keeps the nasal passage moist. नाक को नम बनाए रखता है. अगर नाक सूख जाएगी तो खून निकलता है नाक से. बहुत से लोग गर्मी के मौसम में बहुत क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, धूप में फुटबॉल वगैरह, तो उनका कभी कभी नाक से खून निकलता है, नाक सूख जाती है. तो ये नाक को मॉइस्चर देता है म्यूकस, सर्दी. और सेकंड फंक्शन, ये भी डस्ट को ऑब्जॉर्व करता है, डस्ट को कैच करता है म्यूकस. कभी कभी आप नाक से इनको तो है ना, उसमें ऐसा
ऐसा मिट्टी मिट्टी निकलती है, कहीं आप डस्ट, कहीं झाड़ू लग रही थी होगी रास्ते में और आप वहां से चले गए तो वो पूरा डस्ट आपके नाक में आ जाएगा और फिर वो नाक से लग देंगे तो बहुत सारा डस्ट आपके सर्दी के साथ में निकल जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया वी हैव सीन, आफ्टर द ट्रैकिया कम द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, देयर आर टू ब्रोंकाई इन आवर लंग्स, ये एक ब्रोंकस, ये भी एक ब्रोंकस एंड प्लूरल बोले तो ब्रोंकाई, रेडियस रेडियस दोनों मिला प्लूरल रेडियाई, सो दीज टू आर ब्रोंकाई and each bronchus ends up into bronchioles. These small pipes are called bronchioles, bronchioles, bronchioles or singular is bronchiole. So each big pipe, each big bronchus divides into many hundreds of thin branches, thin tubes, and each thin tube is called a bronchiole. Each thin tube is called a bronchiole. और ये ट्यूब थिन क्यों है? हर थिन ट्यूब जहाँ जाके खत्म होता है तो वहाँ पर छोटे छोटे बलून्स होते हैं, वेरी स्मॉल साइज बलून्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। These balloon like structures are called alveoli. Alveoli. Singular is alveolus and plural is alveoli. यहाँ पर alveoli होते हैं। अब हमारा लंग ऐसा क्यों नहीं कि 10 रुपीज वाला एक ही बड़े बलून की तरह क्यों नहीं है? इतने सारे छोटे छोटे बलून्स क्यों होते हैं हमारे लंग्स में? इतने सारे छोटे छोटे एल्वियोलाई क्यों है? और हर एल्वियोलस में एक एक ट्यूब जा रहा है, एक एक पाइप जा रहा है। ईच ब्रोंकियोल इज गोइंग इनटू एल्वियोलाई। सो ऐसा क्यों है? बिकॉज सी एल्वियोलाई आर वेरी स्मॉल बलून्स, और अगर बड़ा ब्रोंकस में बहुत सारी एयर आ रही है तो एयर प्रेशर वुड बी वेरी हाई, एयर का प्रेशर हाई रहेगा और इतनी सारी हवा अगर एक ही ब्रोंकियोल में घुस जाएंगे तो ब्रोंकियोल ही फूट जाएगा, सॉरी एल्वियोलस में घुस जाएंगे तो एल्वियोलस फूट जाएगा। इसीलिए हियर द एयर इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड small amount of air goes into each alveolus. हर एल्वियोलस में थोड़ी थोड़ी हवा चली जाती है, ठीक है। अब मुझे आप एग्जांपल बताओ कि मैंने हल्दीराम से 2 बूंदी के लड्डू खरीद के लाया। हल्दीराम से मैंने 2 बूंदी के लड्डू खरीद के लाया। एक बूंदी का लड्डू एज इट इज रखा मैंने और दूसरे बूंदी के लड्डू को मैंने एक एक बूंदी निकाल दिया। उसकी बूंदी समझते हैं ना आपको? मैंने एक बूंदी निकाल दिया बूंदी के लड्डू की, तो एक लड्डू बना हुआ है और दूसरा जो लड्डू था अब मैंने उसकी बूंदी बना दी, एक प्लेट में बहुत सारी बूंदी रख दिया। अब मैंने आपको एक काम दिया, क्या कि ब्लैक कलर का पेंट मारना है। एक जन बूंदी के लड्डू पे ऊपर से पूरा पेंट मार दो, आउटर सरफेस एरिया पर 4πr² पूरे आउटर सरफेस एरिया पर पेंट मार दो। और दूसरे स्टूडेंट को मैंने काम दिया कि हर एक जो बूंदी है, हर बूंदी को चारों तरफ से काले कलर का ब्लैक पेंट मारना है हर बूंदी को। तो किसको ज्यादा पेंट लगेगा, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? एक सिंगल लड्डू का सरफेस एरिया ज्यादा है 4πr² या छोटे छोटी बहुत सारी बूंदियां मिला ली तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा है? लॉजिक लगाओ, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? छोटी छोटी बूंदी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि जो बूंदी का लड्डू है उसमें तो ओनली जो ऊपर ऊपर की बूंदी है उस पर पेंट मार रहे हैं, अंदर की बूंदी पर तो पेंट नहीं मार रहे, वो तो दबी हुई है सेंटर में, है ना। लेकिन जो बूंदी सिंगल कर ली है हमने, बूंदी अलग अलग कर ली है, उसमें हर एक बूंदी को हमको पेंट मारना है, तो उसमें सरफेस एरिया बढ़ गया और हमको पेंट ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सिमिलरली जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो गैसेस का एक्सचेंज भी बढ़ जाता है। ये एल्वियोलाई करते क्या है? दे exchange the gases. Which 2 gases? Oxygen and carbon dioxide. यहाँ पर ध्यान से समझो। From here blood will come carrying oxygen. Oxygenated blood आएगा, यहाँ से oxygenated blood आया और ये blood this one big artery will divide into small capillaries. Small branches में divide हो जाएंगी। This one big artery, sorry not artery, pulmonary vein होती है। So पल्मोनरी वेन होती है ये। अभी इसका टॉपिक आने का, जब हम हार्ट के टॉपिक पढ़ेंगे देयर आई विल एक्सप्लेन। अभी इतना ही याद रखो, ये ब्लड वेसल है, खून की नस है और इसमें ऑक्सीजन लेके आई, ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, यहाँ पर आई तो इसने क्या कर दी? सबको ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन दे दी तो पिंक कलर रेड कलर गायब हो गया और सब एल्वियोलाई से CO2 ले ली। CO2 ले ली तो इसका कलर कौन सा हो गया? यू नो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ब्लड में CO2 मिक्स हो जाए तो ब्लड का कलर पर्पल हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और
जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिली हो उसका कलर जो है थोड़ा ऑरेंज जैसा होता है, ब्रिलियंट रेड होता है, एकदम ब्राइट रेड कलर होता है। तो ये ब्लड ने ऑक्सीजन दे दिया लंग्स को और CO2 ले लिया, पिकअप कर लिया और ये अब वापस जा रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ रहे हो? इसने क्या लेके आया? पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट में क्या होता है, हार्ट में जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है, फिर पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, क्या लेके जा रही है, CO2 वाला ब्लड ले जा रही है और फिर CO2 लेके O2 उल्टा हो गया अपना, दिस इज CO2, अरे ये CO2 वाला ब्लड लेके आए और ये O2 वाला ब्लड लेकर जाएंगे। अच्छा, अपन डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जाने दिस इज O2 and this is CO2. Blood will come from here. Blood आया, उसने CO2 दे दिया और CO2 देने के बाद क्या ले जा रहा है? ऑक्सीजन ले जा रहा है। This is okay. See, pulmonary artery जो है वो CO2 लेके आई, CO2 ये इसने क्या कर दिया, CO2 पूरे लंग्स को दे दिया, ऑक्सीजन को पिकअप कर लिया और ये ऑक्सीजन अब ले जा रहा है हार्ट के पास में। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हार्ट का टॉपिक आएगा, ठीक है? जब दिल का टॉपिक आएगा तो हार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ सी हियर, ब्लड आएगा CO2 लेकर, CO2 वाला ब्लड आएगा ये ब्लू कलर का और CO2 दे देगा एल्वियोलाई को और एल्वियोलाई क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन दे देंगे। डिफ्यूजन विल टेक प्लेस हियर। व्हाट इज डिफ्यूजन? Diffusion is the movement of a gas. It can be solid or liquid also. But basically diffusion, the word diffusion is used for gases. But remember it can be used for solids as well as liquids and gases. Diffusion solid में भी, liquid में भी और gases में भी होता है। Only liquid में होता है तो osmosis कहते हैं, है ना? OSMOSIS, osmosis. Osmosis only liquid में होता है, वो भी एक टाइप का diffusion जैसा ही है। ठीक, लिक्विड में हो तो ऑस्मोसिस बोलते हैं और किसी सॉलिड लिक्विड या गैस में हो तो डिफ्यूजन। तो यहाँ गैसेस का डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ अ गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर क्वांटिटी टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू अ रीजन ऑफ लोअर क्वांटिटी। जहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है वहां से ऑक्सीजन कम वाले एरिया में जाएगी, जहाँ ऑक्सीजन कम है उधर चली जाएंगी और जहाँ CO2 ज्यादा है वहां के CO2 निकल के ऐसी जगह चली जाएंगी जहाँ CO2 कम थी। फॉर एग्जांपल ये वाली जो ब्लड वेसल है, इट इज फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। इसमें ब्लड आ रहा है और ब्लड में CO2 बहुत सारी है, तो ये CO2 बहुत सारी है और एल्वियोलाई में क्या है? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बहुत भरी हुई है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई एल्वियोलाई में? हमने सांस लिया, हमने एयर इनहेल की तो उसमें ऑक्सीजन भर गई एल्वियोलाई में। समझ रहे हो? एल्वियोलाई में क्या भर गई? ऑक्सीजन भर गई। अब ये एल्वियोलाई क्या करेंगे? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है और ब्लड में CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ब्लड किसको ऑक्सीजन देगा? एल्वियोलाई को देगा, क्योंकि ब्लड में CO2 ज्यादा है और एल्वियोलाई में CO2 कम है। सो CO2 विल मूव फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में क्या चीज ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा। क्या चीज कम है? CO2 कम है। तो एल्वियोलाई CO2 ले लेंगे और ऑक्सीजन ब्लड को दे देंगे। एल्वियोलाई में CO2 कम है और O2 ज्यादा है, तो O2 ज्यादा है तो O2 ब्लड को दे देंगे और CO2 कम है तो एल्वियोलाई CO2 को ले लेंगे। These capillaries, these thin capillaries, ये जो बारीक बारीक नस है ये पतले रुमाल की तरह होती है। जिस तरह कोई पतला सा रुमाल होता है, दस्ती होती है, हैंकी होती है, इस साइड से फूंक मारो तो उस साइड ही हवा लगती है। A hanky is a thin network, है ना? उसमें पतली सी जाली होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है थोड़ी सी, इधर से फूंक मारो तो रुमाल के उस पार भी हमको हवा महसूस होती है। So our blood vessels also have minute holes in them, very minute holes through which RBCs, WBCs, platelets cannot pass, through which only air can pass, air can be exchanged. So these thin blood vessels are very thin and they have minute holes. उन holes में से CO2 निकल जाती है। और alveoli कैसे बने होते हैं? तो alveoli also are made up of very thin membranes और alveoli भी इतने पतले होते हैं, उनमें भी जाली छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स में से O2 निकल के ब्लड वेसल में घुस जाती और ब्लड वेसल में के CO2 alveoli में घुस जाती। फिर alveoli का फिर क्या होता? जब ये CO2 से भर जाती है alveoli तो यहाँ पर होता है हमारा एक डायफ्राम। दिस इज द डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ठीक है?
ये डायफ्राम क्या होगा, इट विल एक्सर्ट प्रेशर, द डायफ्राम विल एक्सर्ट प्रेशर. द डायफ्राम इज एन इनवॉलंटरी मसल. द डायफ्राम इज एन इनवॉलंटरी मसल. ये हमारे यहाँ पर होता है लंग्स रिब केज के नीचे. So the diaphragm is an involuntary muscle. Involuntary and it is not under our control. Up to a certain limit we can control it. We can control our breath. But ultimately we will have to surrender. तो ये जो है ये diaphragm जब ऊपर से धक्का मारेगा तो it will exert pressure on the lungs. The alveoli will get compressed. Alveoli compressed होंगे and they will release all the CO2 and this CO2 will be exhaled through the nose or through the mouth also. ठीक है. Along with the CO2 moisture also is exhaled and then the diaphragm goes down automatically. It is an involuntary muscle. It goes up, becomes a dome like, it goes down, up, down, up, down, up, down. So it goes up, then when it goes down, have you ever seen a syringe? If you take out the needle from a syringe and it is an empty syringe, then pull the piston downwards, make space inside the syringe. You have thrown out the needle from the opening of the syringe, throw out the needle and pull the piston backwards. What will happen? The atmospheric air will rush into the syringe. The atmospheric air will go into the syringe. It will get filled up with air. Why? Because when we pulled it up, there was vacuum here, there was nothing. And wherever there is vacuum, air goes to fill that vacuum. Air goes there to occupy space, empty space. Similarly, when the diaphragm goes down, vacuum is created inside the lungs. And nature does not like vacuum. That's why air rushes into the lungs and indirectly we inhale. That is our inhalation. But remember, when we exhale, all the CO2 has gone and all the O2 is given to the blood. Then what will happen to us? Will we die or not? So there is some residual amount of oxygen which is left at the bottom. Some amount of oxygen is still present here at the bottom. And this oxygen gives enough energy for us to remain alive until fresh oxygen comes in. ताज़ी ऑक्सीजन आए तक ये वाली ऑक्सीजन ब्लड को दे देती है ताकि तब तक हमको एनर्जी मिले. तो सम रेजिडुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट हियर. अच्छा, उसके बाद व्हाट एल्स वी हैव स्टडीड डायफ्राम का फंक्शन देख लिया. डायफ्राम क्या है? इट इज मस्कुलर बेल्ट. रिमेंबर, जहां पर भी वर्ड मसल आ गया तो दो बातें हमेशा याद रखना. मसल्स में एक तो ताकत बहुत होती है, ये मसल हो या कोई भी मसल, मसल्स में ताकत बहुत होती है. एंड नंबर 2, जहां भी मसल्स होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्ट होना है टाइट हो जाना, रिलैक्स होना है सॉफ्ट हो जाना, इलास्टिक हो जाना. तो ये इसका भी ऐसा ही होता है. कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्सेस, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्सेस, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेस, ऊपर नीचे, अप डाउन, ये ऑटोमेटिकली होता है. तो लंग्स कॉम्प्रेस, रिलैक्स, कॉम्प्रेस, रिलैक्स, कॉम्प्रेस, रिलैक्स. सो इस तरह से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन नॉर्मली 15 to 18 टाइम्स हमारी बॉडी में होता है और इस तरह गैसेस का एक्सचेंज होता है. अब पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई. इतने सारे एल्वियोलाई क्यों है? आप देखो एक एग्जांपल. खली, लेट अस सपोज खली 150 किलो का है. खली का मास 150 किलो है. खली, द बॉडी बिल्डर, इंडियन रेसलर, इज 150 किलोग्राम इन मास. लेट अस सपोज. अब हमने क्या किया, एक 150 किलो का खली है और गरीब लोगों में कपड़े बंटवाना है या गरीब लोग में अनाज बंटवाना है. लॉकडाउन का समय चल रहा है और गरीब लोग के पास खाना नहीं है, हमको खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खाना? तो हम क्या करेंगे, एक जगह में एक अंकल ने क्या किया, खली को बुलाए, 150 किलो का खली, और वो अकेला गरीब लोगों में एक एक वो खाने की किट बांट रहा है, यानी चावल वगैरह बांट रहा है धीरे धीरे अकेला. और मैंने क्या किया मालूम है, एक अंकल ने खली को बुलाया 150 किलो वाले को, और मैंने क्या किया, 10-10 किलो वाले 15 बच्चों को बुलाया, 10-10 किलो वाले 15 स्मॉल चिल्ड्रन को बुलाया. और स्मॉल चिल्ड्रन को बोल रहा कि एक काम करो, जल्दी जल्दी आप लोग गरीब लोग में खाना बांटो. पता है कौन जल्दी खाना बांट देंगे? खाना भारी नहीं, उठाने में कोई तकलीफ नहीं होती, बच्चे भी उसको उठा लेते हैं इसीलिए. तो कौन जल्दी खाना बांट पाएगा, कौन जल्दी से माल एक्सचेंज कर पाएगा? छोटे बच्चे.
क्योंकि एट अ टाइम कितने लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ कौन कर रहा है, अकेला खाली बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन अकेला तो है, यहाँ छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे एक साथ काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली एल्वियोलाई हमारे लंग्स में इसलिए जिसने हमको बनाया, उसने हमको एल्वियोलाई इसलिए दिया, छोटे छोटे बलून्स इसलिए दिया कि यहाँ ब्लड आके कोई ठहरता थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता कि ब्लड आता है और बोलता है ठीक है चलो CO2 का माल उतारो, चलो ऑक्सीजन का माल भरो, आई विल वेट हियर। ब्लड डज नॉट स्टॉप हियर, ब्लड बस आता है और चले जाता है, उतनी ही देर में जल्दी से CO2 लेना है और O2 देना है ब्लड को। तो इतना जल्दी काम कैसे होगा, तो बहुत सारे एल्वियोलाई क्या करते हैं, जल्दी से थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन सब ब्लड को दे देते हैं और ब्लड जल्दी से ऑक्सीजन लेके भाग जाता है और CO2 दे देता है इनको। तो एल्वियोलाई छोटे छोटे होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर मैं ये ऐसे एक एक एल्वियोलस को ले लूँ, छोटे छोटे एक एक एल्वियोलस को ले लूँ और उसको काट के एक एक शीट बनाऊँ, छोटी छोटी शीट, और वो सब शीट्स को ज्वाइन कर दूँ, तो पता है एक लंबी शीट बन जाएंगी, कितनी, 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर बड़ी शीट बन जाएंगी। हमारे बॉडी का सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं जितना लंग्स का सरफेस एरिया है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई? नंबर 1, दे आर थिन वॉल्ड। कौन सा है, गोल्डन गाइड में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द 3 डिजाइंस मेड टू द एल्वियोलाई टू इंक्रीज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो नंबर 1, the alveoli are thin walled, वो they are very thin, उसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, पतली पतली गैप्स होती है उसमें से दिखाई देता है, मतलब जल्दी से ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज हो सकती है, they are very thin membrane. Number 2, alveoli are covered on every side by thin blood vessels. ब्लड वेसल से कवर्ड है, वो भी कैपिलरीज, पतली पतली बारीक ब्लड वेसल से कवर है। एक ही बड़ी ब्लड वेसल होती तो इतने जल्दी O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं कर पाती, बारीक बारीक रहने से जल्दी जल्दी ऑक्सीजन देना और CO2 देने का काम हो जाता है। नंबर 3, एल्वियोलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन, यानी जल्दी से वो CO2 अब्सॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन ब्लड को दे देते हैं और ब्लड ये ऑक्सीजन ले जाकर पहुंचा देता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। और हमारे ब्लड में क्या होता है, देयर इज अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की टेस्ट करवाओ तो 30 रुपए की होती है। गर्ल्स में हीमोग्लोबिन जो है वो 12 to 16 कितना तो भी यूनिट होता है, 12 to 16 चाहिए, और बॉयज में 12 to 18 समथिंग चाहिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है 30 रुपीज का। हीमोग्लोबिन जरूरी है हमारी बॉडी में। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, 1 hemoglobin molecule takes up 4 oxygen molecules and takes it and transfers it to all the body parts as soon as possible. जल्दी जल्दी पूरे ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैला देता है हीमोग्लोबिन। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता था तो लंग्स से पैर के टो तक, पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन को जाने के लिए 3 साल लगते थे। डिफ्यूजन के भरोसे अगर हम रहते तो ओनली डिफ्यूजन, एक सेल से ऑक्सीजन दूसरे सेल में जाती थी, दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाती थी, तीसरे सेल से चौथे सेल में जाती थी, चौथे सेल से 5वें सेल में, 5th सेल से 6th सेल में, 6th सेल से 7th सेल में। अगर एक एक सेल में धीरे धीरे हर सेल से होते हुए ऑक्सीजन जाती थी तो 3 साल लग जाते थे नियरली लंग से पैर तक ऑक्सीजन को पहुंचने के लिए। बट थैंक्स टू हीमोग्लोबिन एंड द क्रिएटर ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसने हमको हीमोग्लोबिन दिया, वो विद इन अ मिनट तुरंत में ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा रिमेंबर, हमारे बॉडी में बहुत अच्छा सिस्टम है कि वी इनहेल एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन गोज इनटू आवर लंग्स, फिर लंग्स में ब्लड आता है और वो ब्लड ऑक्सीजन को पिकअप करके पूरे बॉडी में फैला देता है। किडनीज को भी ऑक्सीजन मिलती, हार्ट को भी ऑक्सीजन मिलती है, लंग्स को भी ऑक्सीजन मिलती है, लिवर को भी ऑक्सीजन मिलती है, ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलती है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन जाती है वहाँ फूड को जलाती है, फूड के जलने से वहाँ एनर्जी बनती है। तो जिस बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए, वैसे तो सभी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी चाहिए, तो जहाँ एनर्जी चाहिए वहाँ ऑक्सीजन चाहिए। समझ रहे हो? अब अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज सिंपल डिफ्यूजन नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? हमारी बॉडी में अगर लंग्स नहीं होते थे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती थी और ओनली डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती थी, तो ये हमारे लिए इनसफिशिएंट होता था। हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती थी अच्छी तरह। क्यों? आंसर है, ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर।
अगर हमारे बॉडी पार्ट्स एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे तो क्या होता था, लंग्स हमारी बॉडी में ये स्किन नहीं होती थी, लंग्स खुले रहते तो क्या होता था, लंग्स के सभी सेल्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेते थे। किडनी के सभी सेल्स जो है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेते थे। हार्ट के सेल्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेते थे। बट सिंस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, आंसर है 2 मार्क्स का। वाई इज सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मालूम है, एक सेल में ऑक्सीजन जाएंगे, वो ऑक्सीजन से सेल भर जाएंगे, उसमें फुल कॉन्सेंट्रेशन, बाजू का सेल खाली है, फिर बाजू के सेल में ऑक्सीजन जाएगी। सेकंड सेल में ऑक्सीजन बहुत होगी, थर्ड सेल में नहीं है तो थर्ड सेल में ऑक्सीजन जाएगी, फिर थर्ड सेल में बहुत ऑक्सीजन है, फोर्थ में नहीं है तो फोर्थ सेल में ऑक्सीजन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक एक सेल टू सेल ऑक्सीजन का ट्रांसफर होने को कहते हैं डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट to transfer oxygen to all the body parts in multicellular organisms? तो आंसर क्या है, all the cells of our body are not in direct contact with the atmosphere and hence we cannot take oxygen through diffusion only, है ना। हमको only हमारा diffusion के थ्रू respiration नहीं हो सकता है। प्लांट्स में डिफ्यूजन होता है, प्लांट्स के हर बॉडी पार्ट में रूट स्टेम्स वो सब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अगर किसी प्लांट को बहुत सारे पानी में डुबा दो, राइस के अलावा बहुत सारे प्लांट्स को पानी में डुबा दो, वाटर लॉगिंग हो जाए तो प्लांट्स मर जाते हैं। ये भी ओसवाल में एक हॉट्स का क्वेश्चन पूछा है, एक प्लांट है उसको आपने बहुत सारा पानी दे दिए और अब उसके रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही क्योंकि पानी में ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती, तो रूट्स मर जाएंगे और प्लांट ही मर जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपके। अब दूसरी बात मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में पूछा है कि यू माइट हैव सीन फिशेस इन एन एक्वेरियम। किसी एक्वेरियम में आपने मछली को देखे होंगे, इट ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ क्वाइट ऑफन। दिस इज अ फिश, जस्ट 1 मिनट।